पहले की बात है. So that Okay. time Bangalore used to experience 4 different weathers in a single day. Okay, that's Mo- interesting. Moment there will be, it'll get heated, it will start pouring. At least for 15 minutes there will be a shower. Okay. And I also heard that recently, the roads of Bangalore is not good anymore. I don't know what's wrong, but a lot of people complain about it. My friends in Bangalore that See, our infrastructure is not able to take care of the amount of inflow of population which is happening in Bangalore. वो challenge है. I also heard that recently, the roads of sorry, I muted my audio because yesterday we had a small glitch. We were not live on all our Facebook pages, but today we are back. We are live in all our partners' pages, YouTube, and welcome everyone. I see a lot of people already joined. So I think team from Jabalpur Incubation Center, Agranshu and Burkha, you guys are also here. I think we have Jabalpur Smart City CEO will also be joining. Excellent. We'll be starting in a couple of minutes. Sure. So I was telling you about yesterday's session. So yesterday we had the Vice Chancellor of RGPV University, Dr. Sunil Kumar, and we had the Director of IIM Indore, Dr. Himanshu Rai. Then we had this because CII Young Indians, they're also one of the partner of this initiative. So then Yes. we had Entrepreneurship National Chair from Hyderabad, Mr. Rohit. He also joined, and then we had CII State Chair Madhya Pradesh. He couldn't join, so he sent his recorded message. And same was with the Collector Jabalpur, the Chairman of Smart City Jabalpur, Mr. Bharat Yadav ji. Ji. Nice to hear that. It's one of the fantastic initiatives which you have taken Yeah, up. Yeah. yeah. I mean, the response is phenomenal, Hmm. and we see because I think that is the need of the hour, because especially after Modi ji's announcement of self-reliant India, the Atmanirbhar Bharat, and then this special package of 3 lakhs crore to MSME, and then changing the definition of MSME, including service industries also. So startups को एक अच्छा window मिल गया कि now they're eligible for a lot of things now. So it's all about giving them the right direction and then the supply chain disruption. So जो अभी लोगों को and it's all local now. So instead of global, we all are going local. So what can be made locally? क्या हम कर सकते हैं? So that was the whole idea. So I think it's the right time. The timing has been perfect. So it's not just us. The universe is conspiring for such things that India should promote entrepreneurship to the next level now. And Absolutely. I'm sure people like you, mentors like you, and in our community, we all will come together and help our startups. Absolutely. This is the time. ये अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? Right. Right.
So this is our time, and with India having so much of young population, Yeah, it cannot be better time than this. correct. Yeah. So we generally this session will be on for about 1 hour. So we'll keep a good 15 minutes for the question answer session, because as you can see, people have started pouring in their comments, and we'll be taking these questions, and because that's important. We need to answer. We need to understand उनको कितना समझ में आ रहा है. So it's very important to take their questions. So we'll keep good 15 minutes for the question answer, and not at the very end. If something is relevant for that particular discussion, I think हम उस समय उन questions को ले सकते हैं. Absolutely. तो बीच में प्रेजेंटेशन के बीच में जब भी कोई भी क्वेश्चन आया, सवाल आया, तो you can tell me, and I can start, or we'll take the questions. I'll start answering, because getting understanding ज़्यादा important है. जितना भी बताया. I think we have our CEO sir, CEO is Smart City Jabalpur, is live with us. Good evening, sir. And welcome to Pathshala. I know it was your baby. You conceptualized it, and we all are executing it. So welcome here. Good evening, sir. Good morning, good evening, CK, and good evening to all. Really nice to join all of you, and we are looking forward for this initiative, and hopefully, I think yesterday's session was really good, and hopefully we will go way forward from this point. And I think I'm just here to listen to all of you, so it's all yours, and thank you very much. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you, sir. And we'll begin in just 1 minute time. So I'll quickly recap what happened yesterday. कल का जो हमारा सेशन था, बाकी स्टार्टअप्स के लिए we understood कि स्टार्टअप का कोर डेफिनेशन के, हालांकि हमें डेफिनेशन पे जाना नहीं चाहिए, बट एक कॉमन मिसकंसेप्शन है या एक गलत अवधारणा है कि हर कुछ स्टार्टअप क्यों नहीं हो सकता है. किराने की दुकान से लेके एक पंक्चर का शॉप, या फिर एक हाईली टेक सेवी AI/ML बेस्ड स्टार्टअप, इन सभी में क्या डिफरेंस है. क्या है किराने की शॉप स्टार्टअप हो सकता है? तो हमारे जो मेंटोर थे मिस्टर डॉक्टर हिमांशु राय, उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड देन इट वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय VC sir and our Devesh Chawla. Maybe you might be knowing him. He is the CEO of Chatur Ideas Mumbai. He's one of our mentor in Jabalpur Incubation Center as well. तो काफी अच्छे से उन्होंने elaborate किया कि आपके आइडिया में scalability is very important. अगर आपको लगता है कि आप किराने की एक दुकान है, कल को आप 10 खोल सकते हैं, 20 फ्रेंचाइजी कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, आप जितने स्पीड से उसको स्केल अप कर सकते हैं, वो पोटेंशियल होना चाहिए, भले आप एट दिस पॉइंट इन टाइम स्केल अप ना करें. सो वो डेफिनेशन काफी अच्छे से लोगों को समझाया. एंड देन आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट वन फैक्ट दैट हमारा कल के सेशन का हमने एक क्विज ऑर्गेनाइज किया था कि बिकॉज वी from this mission, what we are planning is we are planning to select about 50 to 100 startups. Initially, we thought to select only 30, but now with the response of RGPV and Commonwealth and Smart City Jabalpur and CII, we are saying, we can increase that number. We can increase that number to up to 100 also. जिसमें हम लोगों को मतलब जो selected startups को 1 साल का incubation, free incubation support, plus initial grant amount, some seed amount can be provided to those startups depending on their idea. So we'll be selecting top 100 startups from this program. And for us, it is very important to understand your concept. आपको कितना समझ में आ रहा है, आपका इंटरेस्ट कितना है, इसलिए क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग प्लीज जो क्विज का लिंक है, आई थिंक वी गॉट अबाउट 2500 रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यस्टरडेज क्विज. जिन्होंने नहीं किया है, लिंक्स हमारे सोशल मीडिया के सारे पेजेस में अवेलेबल हैं.
आप लोग प्लीज जाएं और वो क्विज को रिस्पॉन्ड करें. इट्स ओनली 2 minutes क्विज, 5 questions आर बेस्ड आउट ऑफ द डिस्कशन ओनली. आज जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी मिस्टर सोवन हमसे शेयर करेंगे, सो द टुडेज क्विज विल बी अबाउट दैट सेशन ओनली. तो जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो लोग जाएं और उसको क्विज को कंप्लीट करें. दैट विल हेल्प अस सिलेक्टिंग योर आइडिया, सिलेक्टिंग योर स्टार्टअप्स फॉर द टॉप 100 startups that we'll be selecting out of this program. So I think that's all, and now the stage is all yours, Sovan. You can start, and if some good questions would come up, I would interrupt you to take that question first. उसको हम answer करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. And considering the wider range of audience, please keep this session in Hindi and English both, predominantly Hindi. ठीक है. Thank you so much, CK. And जो आपने बताया अभी कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है फॉर सेलेक्टिंग 100 स्टार्टअप्स बेस्ड ऑन द आंसर ऑफ देयर क्विज एंड देयर पार्टिसिपेशन, मतलब इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती. बिकॉज हम अगर ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स को, तो डेफिनेटली उन लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां से हम उनको आगे ले सकते हैं. बिकॉज मेंटरिंग भी रहेगा, इंक्यूबेशन भी रहेगा, एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो भी चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा. तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती. सो दिस इज वेरी नाइस, एक्सेलेंट, सुपर. तो अभी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अच्छा हम क्या करें, बिजनेस करें, स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली, बिजनेस किसको बोलते हैं, स्टार्टअप किसको बोलते हैं, एंड कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोग स्टार्टअप में पार्टिसिपेट कर सकें, एंड एम्प्लॉयमेंट ले लें या फिर यानी कि जॉब ले लें, या फिर हम लोग कोई स्टार्टअप कर लें, कोई बिजनेस कर लें. तो वो कैसे सोचा जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि हम उसमें एक डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे किया जाए. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा. और कोई भी क्वेश्चंस हो बीच में तो आप लोग मुझे स्टॉप करिए, मैं उसी समय आपको उत्तर दूंगा. हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, आगे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, एंड देन सो दैट आपका जितना भी क्लैरिफिकेशन, जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे सॉल्व होने चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग कितना कवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी बात कर रहे हैं आपको पूरा समझ में आए, वो बहुत जरूरी है. तो इसीलिए हम लोग उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपका ये पूरा कंप्लीटली, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये आपका भविष्य का और आपका जो आप लोग जो ग्रोथ करोगे और जिसके वजह से लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट होगा और सबके लाइफ में जो तरक्की आएगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसलिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है. तो एकदम कुछ भी सवाल, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, तुरंत आप उसको पूछिए, ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे, उसको हम लोग आंसर कर सकेंगे. ठीक है. तो यस, सो अभी शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस, जैसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो बिजनेस करेंगे. तो बिजनेस में और स्टार्टअप में अंतर क्या होता है. सो बिजनेस किया तो बिजनेस किस तरह का बिजनेस होता है. जैसे कि हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, हमने एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, एंड वो एक बिजनेस हो गया. या फिर एक फार्मेसी शॉप ओपन कर दिया, वो एक बिजनेस हो गया. या फिर कोई हॉस्पिटल सेटअप कर दिया, उसमें भी ऑफ कोर्स वो लोगों के लिए है, बट उसमें भी एक बिजनेस होता है, बिकॉज फाइनली वहां से पैसा आता है. या फिर एक स्कूल सेटअप कर रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस है. या फिर कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो टैक्सी सर्विस करते हैं, तो वो भी बिजनेस है. तो ये सारी चीजें बिजनेसेस है. अपना खुद का टैक्सी खरीद के हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस. या फिर कोई होटल बना लिया हमने, सो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस. तो ये सारी चीजें को बिजनेस क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग स्टार्टअप क्यों नहीं बोल सकते हैं, व्हाई इट इज बिजनेस ओनली. क्योंकि इसका जो होता है रीजन स्टार्ट करने का, वो इसलिए होता है कि इससे मेरी तरक्की हो, खुद की. हम लोग खुद अपने आप को कैसे तरक्की में ले सकें, वो फोकस होता है. कि अगर मैंने एक होटल स्टार्ट किया तो वो मेरा होटल है, किसी और को होटल नहीं है, एंड उस होटल से मुझे फायदा होना चाहिए, मुझे बेनिफिट होना चाहिए, प्रॉफिट्स होना चाहिए. सो बिजनेस मतलब किस तरह से हम लोग उसको प्रॉफिटेबल बना सकें राइट फ्रॉम डे वन. जैसे अगर पूरा होटल सेटअप कर दिया और उसको स्टार्ट कर दिया, हमने इनॉग्रेट कर दिया,
तो वहां से हम डे वन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग आके रहना शुरू करेंगे। सो दैट इज अ बिजनेस। और इस तरह का बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, सो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। यू हैव टू पुट दैट इन्वेस्टमेंट, आपको वो इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा एंड उसको स्टार्ट करना पड़ेगा एज ए बिजनेस। इसमें बाकी लोगों का फायदा कम, आप लोगों का फायदा ज्यादा है, बिकॉज आपने वो बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। तो दिस इज ओनली फॉर यू और फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके आपके परिवार के लिए है। एंड दैट इज व्हाई वी डू बिजनेस। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज डन। उसका मतलब ये है कि आपने खुद का पैसा लगाया है एंड इसमें बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बाकी लोग को इसमें से फायदा नहीं होगा ना। जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप में इसको हाउ डू वी चेंज इट कंप्लीटली, बिजनेस से हम लोग उसको स्टार्टअप में कैसे सोचा जाए। तो स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप अपने से ऊपर बाकी लोगों के लिए भी सोच रहे हैं कि आपके साथ बाकी लोग का कैसे बेनिफिट हो। तो इसमें यह होता है कि हम लोग किस तरह से एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, जितने सारे लोगों के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जितने लोग हैं। नॉट ओनली अ सिटी, वो सिटी के अलावा डिफरेंट सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स, पूरे इंडिया में कैसे हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बियॉन्ड यू, मतलब आपसे सिर्फ आपके लिए नहीं, आउटसाइड ऑफ यू ऑल्सो। मतलब ये हुआ कि बाकी लोगों को भी उससे बेनिफिट हो, उसके वजह से बाकी लोगों को कन्वीनियंस हो या कुछ तो फायदा हो, उनका टाइम सेव होगा या फिर उनका मनी सेव होगा बाकी लोगों का। और नॉट ओनली दैट, उनके लिए बहुत सारी सुविधा होंगी। नॉट ओनली दैट, जो बाकी लोग करना नहीं चाहते वो आप करके दे रहे हैं उनके लिए। सो दैट इज हाउ स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट कि हम अपने अलावा बाकी लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी लोग के लिए कैसे सोचा जाए। सो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज आउटसाइड मी, मतलब मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब तक आप वो नहीं सोचेंगे तो उसको स्टार्टअप की तरह लिया नहीं जा सकता या एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से लिया नहीं जा सकता। तो एक डिफरेंस होता है बिजनेस वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस में आप फायदा देखते हैं राइट फ्रॉम डे वन, शुरू से, फर्स्ट डे से। एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं, आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसका ये हो सकता है कि आपको डे वन से आपको पैसा ना मिले, आपको रिटर्न नहीं मिले, पॉसिबिलिटी है इन एंटरप्रेन्योरशिप। बट ओवर ए लॉन्ग टाइम जब आप उसको आगे लेके जाएंगे तो देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसमें, इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। मतलब बिजनेस में आपको अगर बढ़ाना है बिजनेस, तो आपको उतने एम्प्लॉइज, उतने लोगों को लाना पड़ेगा। सो इट इज लीनियर, इट इज कंप्लीटली लीनियर। सो जैसे आपने एक आईटी का कंपनी ओपन कर दिया एज एन एग्जांपल, एंड उस आईटी का कंपनी में से आपको बिजनेस बढ़ाना है आपको, तो जितने आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे उतने ही लोग रहेंगे, बिकॉज उतने प्रोग्रामर्स रहेंगे, उतने डेवलपर्स होंगे, उतने आप बिजनेस लेके आ सकेंगे, एंड उसी तरह से आपका स्केल होता है। इट इज ऑलवेज लीनियर। बट एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में क्या होता है? I have a question here. Yes. जैसे 3-4 लोगों ने अभी हमसे पूछा कमेंट सेक्शन में कि मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, दे आर इधर जस्ट पास आउट, अभी पास आउट हुए हैं या फिर वो पास आउट होने वाले हैं। तो जैसे मार्क जुकरबर्ग ने कर लिया था, बिल गेट्स ने कर लिया था कि क्या हम कॉलेज पढ़ते पढ़ते अपना स्टार्टअप चालू करें, रिस्क कम होता है। तो जब वो अभी पास आउट हुए नहीं है, उनके पास टाइम है, लेकिन शायद थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, तो शुड वी इनकरेज देम कि आप कॉलेज में रह के अपना स्टार्टअप चालू कीजिए, या फिर उनको बोलें कि नहीं आप, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज दोनों जगह हैं, फेलियर स्टोरीज दोनों जगह हैं। तो क्या कॉलेज स्टूडेंट्स को हम इनकरेज कर सकते हैं कि आप अपना पार्ट टाइम, दिस मे नॉट बी अ राइट वर्ड, पार्ट टाइम स्टार्टअप, क्या आप शुरू कर सकते हैं कुछ फ्रेंड्स मिलके? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? यस, सो इसमें आपने मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल लिया, तो उन्होंने जो बिजनेस किया है मार्क जुकरबर्ग फॉर फेसबुक एंड देन व्हाट्सएप भी वैसे स्टार्ट हुआ था। बिल गेट्स हैड स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट राइट फ्रॉम द कॉलेज। इनफैक्ट दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज एंड उन्होंने वहां से स्टार्टअप शुरू किया था, कॉलेज से स्टार्ट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया एंड दे लेफ्ट द कॉलेज, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं
जो बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको पता नहीं है। लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है, लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्टअप्स किया हुआ है, और दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि वो पता नहीं चलता है। जो फेलियर स्टोरीज जो हैं वो इतना ज्यादा हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जितने भी सक्सेस स्टोरी है वही हमें पता चलता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके अलावा आप लोग अगर कॉलेज में हैं तो आपको बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। आपको स्टार्टअप, आई विल डेफिनेटली एनकरेज कि आप लोग बिजनेस या स्टार्टअप पे फोकस करें, बिकॉज जो माइंडसेट है आपका, जो थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका, वो उसी समय से अगर चेंज होना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसका रीजन ये है कि आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो सबसे हाई होता है, बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंसी। आपको इमीडिएटली आपको अर्न करके, you don't have to feed your family, because the money is coming from your parents. That support system is already existing, which means कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी क्वेश्चन ये होता है कि स्टार्ट तो कर लिया, स्टार्ट तो कर सकते हैं डेफिनेटली, 4 लोग मिलकर स्टार्ट कर लिया, पर उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 4 फ्रेंड्स ने मिलकर स्टार्ट कर लिया एक बिजनेस इन द कॉलेज, अभी उनके बीच में जो अलाइनमेंट है वो बहुत जरूरी होता है। इट्स नॉट अबाउट स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट अभी उसको सक्सेसफुल कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग इज पॉसिबल, डेफिनेटली वो किया जा सकता है। 4 फ्रेंड्स ने मिलकर कर दिया बिजनेस स्टार्ट, अभी उन चारों में जो अलाइनमेंट है, मतलब उन चारों में जो थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी है कि हमको आगे लेके सही में जाना है या नहीं लेके जाना है, या बीच में कोई ड्रॉप कर सकता है। सो उसको सक्सेसफुल करने के लिए वो जो जुड़ जाए। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही होता है कि जो आपका जो खुद का जो थॉट प्रोसेस, सोच, ड्रीम जो है आपका, दैट यू अलाइन, लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड फोकस ऑन दैट सिंगल ड्रीम। एक सिंगल ड्रीम को आप अचीव करने के लिए आप लग जाते हो। जब तक वो ना हो कि चारों मिलके एक ही ड्रीम सोचें और उसको सक्सेसफुल करने के लिए जुट जाए पूरा, तभी जाके वो। एक और क्वेश्चन जो लोगों का अक्सर रहता है कि चूंकि बच्चे हैं कॉलेज के, पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, तो जो बूटस्ट्रैपिंग की बात आती है, ऑब्वियसली इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं, इनको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तो बनाना ही है बिफोर दे गो टू इन्वेस्टर्स और बिफोर दे कुड एक्चुअली थिंक सीरियस अबाउट देयर स्टार्टअप्स। तो वो पैसों का जो अरेंजमेंट है कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली बात वहीं आगे रुक जाती है कि हम कितना मतलब वो पेरेंट्स से पैसे लेके स्टार्टअप शुरू करें। बूटस्ट्रैपिंग की जो बात है, या फिर कुछ आपको लगता है कि कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें होना चाहिए, या ऐसा कोई गवर्नमेंट का सीड फंड हो या फिर किसी इंक्यूबेशन सेंटर का कोई सीड फंड हो, हम कैसे इनको इनकरेज करें कि मतलब जो बूटस्ट्रैपिंग की बात है, जो पैसों की बात है, हाउ शुड दे अरेंज फॉर फंड्स? ओके, सो अभी जब फंड्स की बात आ जाती है तो एनीवे जब स्टूडेंट्स लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सो काफी पैसा खर्चा होता ही है। दे आर ऑलरेडी टेकिंग दैट मनी फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट? सो दैट इज ऑलरेडी देयर। सो अब अगर आप सोचोगे आपके लाइफ में फॉर एजुकेशन जितना भी आप पैसा स्पेंड करते हो, वो एजुकेशन के टाइम में आप गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग दैट, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एंड एंटायर एजुकेशन राइट अप टिल इंजीनियरिंग कंप्लीशन या MBA कंप्लीशन, जितना भी आपको पैसा का जरूरत होता है, दैट इज गिवन बाय योर पेरेंट्स एंड यू आर स्पेंडिंग दैट मनी, right? So you are doing that already. And why you are spending that 10 lakh, 15 lakh, 18 lakhs, 20 lakhs, depend करता है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, so that आपको एक जॉब मिले। और वो जो जॉब मिलता है आपको, उससे आप, it takes time to recover all that money your parents have spent. It is going to take time, maybe 6 years, 10 years it is going to take to recover that money. वो आपको वापिस आने में उतना टाइम लगेगा। So हमारा एक धारणा है कि अगर स्टार्टअप या बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। शुरू से हमको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू दैट यू हैव टू स्पेंड मनी टू डू अ बिजनेस। ऐसा जरूरी नहीं है। लाइटर नोट, जो अभिषेक पटेल हमारे एक व्यूअर, उनका क्वेश्चन भी है कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें। पेरेंट्स बोलते नहीं, आप जॉब सिक्योर करो, डोंट गो फॉर स्टार्टअप्स। अमेजॉन आ रहा है, TCS आ रहा है 2.6 का पैकेज लेके या 8.9 का पैकेज लेके अमेजॉन ज्वाइन करो। डोंट इवन, उनको लगता है स्टार्टअप मतलब ये फालतू की बात कर रहा है। तो स्पेशली इन अ स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, ये आज भी एक क्वेश्चन बना हुआ है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि
वो उन्हें जॉब वर्सेज स्टार्टअप्स में पेरेंट्स को कन्विंस करना। कल हमने एक पोल भी किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि स्टूडेंट स्टार्टअप में सबसे बड़ा हर्डल क्या है, तो आप यकीन मानिए पैसों से भी बड़ा हर्डल लोगों ने बोला पेरेंट्स को कन्विंस करना, फैमिली को कन्विंस करना कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अपना स्टार्टअप चलाना है। ब्यूटीफुल। ये जो आपका जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, अभी अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स आपको ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप मत करो, आप जॉब ज्वाइन कर लो, ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है आपके फैमिली से या फ्रेंड से कोई भी ऐसी दिक्कतें अगर आ रही हैं तो ये अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड, ओके, एब्सोल्युटली नाइस। क्योंकि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने आप पे अगर भरोसा है तो डेफिनेटली आप उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी कंस्ट्रेंट्स आए आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड से या कहीं से भी रिलेटिव से कि आप इसको मत करो, दे आर टेस्टिंग योर बिलीफ सिस्टम। पहली बात है वी विल फिगर आउट द सॉल्यूशन हाउ टू हैंडल इट, वो बात की बात है, वी विल डिस्कस दैट। बट सबसे पहले आपका जो सेल्फ बिलीफ है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे रहना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट रितेश अग्रवाल who started Oyo at an early age of 17-18, so it was all about his belief system, अपना खुद के ऊपर जो बिलीफ है। Now why Mark Zuckerberg and Bill Gates were able to do all that, उसका रीजन यही था कि उनके पास इतना बिलीफ था अगर मैं कॉलेज छोड़ भी दूं तो भी मुझे पता है कि मैं उस कंपनी को मैं चला दूंगा, मुझे पता है कि मैं उसको सक्सेसफुल कर दूंगा, राइट? वो इम्पोर्टेंट है। और ये जब तक माइंडसेट नहीं आएगा हमारे खुद के अंदर, ये सोच जब तक नहीं आएगा कि दैट कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ कि मैं कर लूंगा, अगर वो कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ आ गया है आपके पास, देन इट डज नॉट मैटर। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप जाके अमेजॉन ज्वाइन कर लो, गूगल ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। उनकी खुशी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अगर 6 months, 1 year, 1.5 years अगर आप जॉब कर भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपके अंदर वो बिलीफ है तो आप जॉब ज्वाइन करके भी वो बिजनेस कर लेंगे, वो स्टार्टअप को आप कर ही लेंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जब बिलीफ और कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली वो आपके चारों तरफ इट विल ऑटोमेटिकली टेल पीपल कि यू आर मेड फॉर डूइंग इट। इट इज इम्पोर्टेंट दैट self belief and self confidence, that is the most important, and that is what makes the difference. So it is not about convincing parent, you have to convince yourself first, अपने आप को पहले कन्विंस करिए। Yeah, that's a very valid point. Yes. अपने आप को आपने कन्विंस कर लिया तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली कन्विंस हो ही जाते हैं। अगर आज नहीं तो कल हो जाएंगे। हो सकता है आपको टेम्पररी जॉब ज्वाइन करना पड़े, और इससे जॉब ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं जॉब ज्वाइन, एंड बिकॉज यू विल ऑल्सो गेन सम एक्सपीरियंस, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी आएगा, आपको टाइम भी मिलेगा कि आपको अपने स्टार्टअप को आप थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के उसको इंप्लीमेंट कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इट्स नॉट अबाउट दिस वे और दैट वे, ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप दिस इज आंसरिंग। Yeah, absolutely. And just to conclude that, few users commented that, sir, शादी में भी प्रॉब्लम होती है, स्टार्टअप वाले से शादी भी कोई नहीं करना चाहता। वी ऑल बिलीव कि हमें एक सेल्फ, पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस करते थे, अभी सबको लगता है स्टार्टअप इज अ ह्यूज रिस्क, मे बी बिकॉज द नंबर्स आर वेरी डॉन्टिंग। सिर्फ 95% स्टार्टअप 95% फेल हो जाते हैं, 5% सक्सेसफुल हैं। तो एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आई थिंक योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ तो स्लोली यू विल कन्विंस एवरीबडी, maybe your parents or friends or partners, investors, everybody will be convinced, but self belief is very important. Self belief is super important, and वो बहुत जरूरी है। वो अगर आपने कर लिया, अपने अंदर ले आए, तो आप दुनिया बदल सकते हो, है ना? तो वो जरूरी है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको आपका वो सोच बदलना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट बिजनेस और स्टार्टअप में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि बिजनेस भी आपको करने के लिए, बहुत लोग बिजनेस फैमिली से जो आते हैं एंड उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनको पैसा दे दिया कि आप एक दुकान स्टार्ट कर लो, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लो, वेदर दे हैव बिलीव इन देमसेल्व्स और नॉट, उन लोग को स्टार्ट करना पड़ता है, बट जरूरी नहीं है कि दैट इज द बिजनेस विच इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो आपको अपने आप पे बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। सो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे
डेफिनेटली इन डिटेल कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले एक तो सेल्फ बिलीफ की बात हमने कर ली, दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, इस पे फोकस करना है आपको। ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड मीन्स हाउ डू आई सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर अदर पीपल, वो बहुत जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस नाउ टुडे, जैसे बहुत सारे फार्मेसीज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एंड उनका जो सेल उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, तो स्विगी एंड जोमेटो ने आके क्या किया कि उन्होंने उनका सेल बढ़ा दिया। सो दे वर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर थिंग, कि उनका भी बिजनेस बढ़ गया, और जितने लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी कि आप जाके खुद ऑर्डर करके पिकअप सर्विस करो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है सबसे पहले, यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम so that you can transform somebody's life. जब आप the more you help others, the more money will come to you. आप जितना बाकी लोगों के लिए करोगे, ऑटोमेटिकली पैसा वो बाय प्रोडक्ट है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट विल कम बैक टू यू, फॉर श्योर इट विल कम बैक टू यू, राइट? सो we'll discuss about all of these things. So first is about the solving problem. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अगर आप कॉलेज में हो तो इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग द बिजनेस, स्टार्टिंग द कंपनी। आप ये बैठ के सोचिए 4 लोग मिलके कि हम क्या सॉल्व किया जाए, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करें जिससे बहुत सारे लोगों का सुविधा हो, उनका जो है कन्वीनियंस, वी कैन हेल्प इन गिविंग कन्वीनियंस, उनका मनी सेव हो। हाउ कैन वी डू दैट? सोचना बहुत जरूरी होता है कोई भी स्टार्टअप के लिए, सोचना। सो दिस डज नॉट कॉस्ट यू मनी, यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी फॉर दैट। सोचने के लिए और उसको प्लान बनाने के लिए आपको पैसा की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप्स किस लिए फेल होता है? 95% ऑफ द स्टार्टअप फेल। व्हाई? क्योंकि आप कूद जाते हो, आपको स्विमिंग नहीं आती है बट आप कूद गए, अब आप पानी में तैरना सीख रहे हो विदाउट एनीबॉडी सपोर्ट। कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो लोग किसी से स्विमिंग किसी से सीखा नहीं है। इफ एवरीबडी जम्प्स इन वाटर, तो कुछ लोग तो सीख ही जाएंगे स्विमिंग, और कुछ लोग को बहुत दिक्कतें होंगी। स्टार्टअप इज लाइक दैट। ऐसा ही है कि आपने अगर कूद गए तो ऑब्वियसली 95% फेलियर इज देयर, उसमें कोई डाउट नहीं है। इट हैज टू बी 95%, इवन मोर देन दैट। We have to take couple of questions because वो काफी बार रिपीट हो रहा है। एक तो ये है कि क्या गवर्नमेंट कुछ मदद कर सकती है, और दूसरा एक बहुत ही पिन पॉइंटेड सा क्वेश्चन है कि स्पेसिफिकली जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर क्या कर सकता है इन आइडियाज के लिए। तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में हमारा 9 मंथ्स का फ्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। आपका आइडिया थोड़ा भी अगर पोटेंशियल है आपके आइडिया में, या फिर आप में सेल्फ बिलीव है जैसे सोवन ने बताया, तो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर इज ऑल अप फॉर यू। सो ना सिर्फ हम इंक्यूबेशन सपोर्ट देते हैं, सीओ सर बेटर बता सकते हैं कि हमारे साथ में हम हर स्टार्टअप्स को हर क्वार्टर, नॉट एवरी स्टार्टअप, 7 स्टार्टअप्स एवरी क्वार्टर रिसीव अ ग्रांट मनी आल्सो फ्रॉम जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर्स विद द हेल्प ऑफ आवर पार्टनर्स। तो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर इज देयर, जो आपको आइडिएशन से लेके स्केल अप तक हर स्टेज में मदद करेगा। एंड नॉट जस्ट जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर, वी हैव फ्यू अदर सेंटर्स आल्सो इन मध्य प्रदेश, बट ऑब्वियसली जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर इज वन ऑफ द बेस्ट। तो आपको वहां कोई प्रॉब्लम चाहिए, यू कैन ऑलवेज, you are welcome to Jabalpur Incubation Center. Now about this government thing, Sovan, मैं उस पर हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि होता ये है कि बहुत स्कीम्स है गवर्नमेंट की, एमएसएमई की कई सारे स्कीम्स हैं, और हमारे एमएसएमई भी 2 हैं, एक हमारा सेंटर का है, एक हमारे स्टेट का। आई एम श्योर कर्नाटका का भी अपना एमएसएमई होगा, एक हमारा मध्य प्रदेश का है, एक सेंटर के भी स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया है, हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स हैं, बट समहाउ उनका यूटिलाइजेशन स्टार्टअप्स को नहीं मिल पाता है। So maybe because we keep on submitting our reports and suggestion to government also, what is your take on that? How we can improve that ताकि गवर्नमेंट का हेल्प सभी स्टार्टअप्स को मिले? स्कीम्स तो बन जाते हैं बट स्पेशली अभी स्टार्टअप स्टूडेंट स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज के स्टार्टअप्स को पूरा हेल्प नहीं मिल पाता। एब्सोल्युटली। सो वो चैलेंज तो है, हम सब मानते हैं ये चैलेंज है। सो इसमें जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स जितने भी हैं, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को वो सपोर्ट लेके जाना है। So, सबसे पहली बात तो इंक्यूबेशन सेंटर्स की वजह से ये सेशन हो रहा है, दिस 30 days इवेंट। सो दिस इज वन वेरी बिग मूव, बिकॉज एक तो मनी की बात आ गई कि आपको पैसा चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। आपको पैसा से ज्यादा आपको ये चाहिए कि आपको स्विमिंग कौन सिखाए,
वो जरूरी है ना। स्विमिंग आपको सिखाने वाला कौन है? अपने पानी में जब कूदते हैं तो आपको स्विमिंग सिखाने के लिए कोई होना चाहिए उसमें, अंदर, पानी के अंदर। सो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, एंड दैट इज अ बिगर इनिशिएटिव। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। 90% ऑफ द प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है इंक्यूबेशन सेंटर्स, एंड हैट्स ऑफ टू जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर, बिकॉज अगर इस तरह का सेशन हो रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट हो रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग इनिशिएटिव, वेरी वेरी बिग। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स जितने हैं इंडिया में, उन्हीं लोग को गवर्नमेंट को अप्रोच करके आपको करना पड़ेगा। ग्रांट यू विल गेट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डू इट अलोन। द मोर वी प्रूव कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, एंड दे कैन जनरेट रेवेन्यू बन सकता है, एंड उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। इट इज नॉट दैट यू एंड मी अलोन कैन डू इट, हमको साथ में मिलकर, राइट। आई थिंक सीईओ सर हैज टू लीव, सर को कलेक्ट्रेट जाना है, यहाँ सर का एक मीटिंग है। सो थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव आल्सो। वी आर thankful to you, and we look forward to have you back with us in forthcoming sessions. Thank you, sir. Thank you, CK. Thank you, Rohan. And it's really a good session. But मुझे चूंकि अभी हमारे यहाँ कोरोना वाला इशू भी है, and I'm an incident commander also, so I want to leave. But मैंने ये भी रखा है, CK शायद सब लोगों को ये भी बता दें, जैसे मुझे सेशन अगर देखना है तो मैं वेबसाइट पे जाके इसको देख सकता हूँ, लिंक है। कल का सेशन भी मैंने उसको देखा है और काफी अच्छा सेशन जा रहा है। जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में जो चीजें हम लोग करना चाह रहे हैं, उसका सबसे हमने जब इनिशिएटिव लिया था तो मसला हमारा यही था, जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। मुझे लगता है जितना हम आपको सिखा पाएंगे, उससे ज्यादा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम आपसे सीख पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द आइडियाज, लोग कैसे कर रहे हैं। और पोस्ट कोविड मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ सामने चैलेंजेस हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब हम को एक्सचेंज, दूसरे को सपोर्ट मैकेनिज्म समझाएंगे तो शायद बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी आशा के साथ हमने ये शुरू किया है। एंड नो जस्ट आई वांट टू लीव, और आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर लाइव हो गया। ओके, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। या विल कंटिन्यू। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक तो आपको कुछ चीजें समझ में आ गई हैं कि अभी बात करते हैं कि स्टार्टअप को सक्सेसफुल कैसे किया जाए। ओके, तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे। सो वी डिस्कस अबाउट सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अलावा माइंडसेट की हम लोग बात करेंगे कि जब आप कोई भी प्रॉब्लम को उठाते हैं सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ऑफ विच यू वांट टू सेट अप अ स्टार्टअप और ए कंपनी। ओके, तो उस प्रॉब्लम को डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ आइडिया। यस, सो जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आपको ये देखना है सबसे पहले कि वो कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उसकी वजह से। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके वजह से। जैसे अगर हम ओयो का एग्जांपल लें, सो रितेश अग्रवाल ही वांटेड टू स्टे इन बजट होटल, खुद के लिए, अपने खुद के लिए ही वांटेड टू स्टे इन बजट होटल, एंड ऑल्सो हाई क्वालिटी। ऐसा नहीं कि बजट होटल में रहना पड़ रहा है तो द क्वालिटी इज नॉट गुड। सो अच्छे क्वालिटी होटल को, उसको अच्छा क्वालिटी कैसे बनाया जाए। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा था कि अगर मैं कोई बजट, आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच, आई एम अ स्टूडेंट, मुझे उतना ज्यादा खर्चा करना ही नहीं है, कम खर्चा में आई वांट टू स्टे देयर, बट क्वालिटी अच्छा नहीं है, कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और उनको ये भी पता चला कि ये प्रॉब्लम सबका है, सिर्फ उनका खुद का नहीं है। एवरीबडी इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम। तो हमको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जो बाकी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। एंड देन वी हैव टू डू सर्वे। उसके बाद हमको सर्वे करना बहुत जरूरी है कि सही में जो हम सोच रहे हैं, ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सही में हम सोच रहे हैं कि ये सही में बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम है या नहीं है, या सिर्फ मैं सोच रहा हूं ऐसे। अगर हम खुद सोच रहे हैं और उसको आप खुद जाते हैं उस बिजनेस को करने के लिए, सो दैट इज नथिंग बट बिजनेस।
जैसे मुझे मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, मैंने एक शॉप ओपन कर दिया. सो दैट इज व्हाट, मुझे पता नहीं है बाकी लोगों के लिए क्या फायदा होगा, बट मेरे लिए फायदा होगा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया. बट आप स्टार्टअप में हमेशा आपको यही सोचना है कि जो प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ, उस प्रॉब्लम सही में बाकी लोगों को भी वही प्रॉब्लम फेस हो रहा है या नहीं. अगर हो रहा है तो दैट इज द राइट प्रॉब्लम, एंड उसके लिए हमको सर्वे करना बहुत जरूरी है. तो अभी माइंडसेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, कि जब आप स्टार्टअप की बात करें तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आपका बहुत जब कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको लगता है कि इसको मैं कर लूंगा. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम किसी तरह से इसको सक्सेसफुल तो कर ही लेंगे. शुरू में इनिशियल 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आपका हमेशा ये रहेगा कि चलो हमने कुछ सोच लिया है करने का और साथ में मिलके हम लोग अभी करेंगे इसको. बट उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी रहता है कि हम उसको सक्सेसफुल कैसे करें. तो हमें सीखने की बहुत जरूरत होती है. तो जैसे सीके ने लिया था एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग का, बिल गेट्स. सो इन्होंने जब स्टार्ट किया था, इट इज अबाउट गेटिंग दैट एजुकेशन. जो एजुकेशन है, स्टार्टअप बिजनेस का जो एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एजुकेशन है, वो बहुत जरूरी है. वी हैव टू, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप जब तक सीखोगे तब तक आपको पैसा आते रहेगा. द मोर यू लर्न, द मोर यू विल अर्न, द मोर यू विल ग्रो इन द स्टार्टअप. तो आप जिस दिन आपका सीखना बंद हो गया, इट इज नॉट लाइक अ जॉब कि आपने एक बार सीखा उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको एवरी मंथ आपको पैसा आते जाएगा. ओके, सेम थिंग इफ यू इम्प्लीमेंट इट, आपको पैसा आते जाएगा. ऐसा नहीं है बिजनेस में. आप जितना सीखोगे उतना आपको पैसा आएगा, जितना आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपको पैसा आता जाएगा. द मोर यू विल बी सक्सेसफुल इन योर स्टार्टअप. तो उसके लिए एक ये सब माइंडसेट की बातें हैं कि जैसे वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी रेडी कि हमको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है. सो आई एम ए स्टूडेंट of my business, of my startup. I am a student. More you learn, उसका मतलब ये भी है कि हम how much humble we are. हमको शायद सब कुछ पता हो कि हम बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल करें, उसके बावजूद भी 95% से ज्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं. तो हम कैसे उस 5% में जा सकेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? बाय लर्निंग. लर्निंग फ्रॉम होम. किससे आप सीखेंगे? आप उनसे सीखेंगे जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको. तो इसमें आपका जो ईगो है, उसको जितना आप ईगो को कम रखेंगे कि मुझे पता है, उतना आप फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि ठीक है, इट्स नॉट अबाउट, अगर आपको आत्मनिर्भर होना है तो आपको बाकी लोगों का सहायता लेना ही पड़ेगा, जो लोग सक्सेसफुल हैं, ताकि आप उनसे सीखें, ताकि आप आत्मनिर्भर हो सकें. वो बहुत जरूरी है. आई थिंक इस जंक्चर पे हम फिर वो क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि हमें लोगों की सहायता लेना है. काफी लोग पूछ रहे हैं कि को फाउंडर ढूंढना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि लोगों को लगता है कि मैं को फाउंडर किसे बनाऊं. नॉर्मली हम जब प्राइवेट, आज अगर स्टूडेंट का स्टार्टअप ठीक ठाक चलता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड खोलना होता, तो यू बिलीव मी ऑन दिस, लोग 90% अपने रिलेटिव को एज अ डायरेक्टर बना लेते हैं, या तो अपने पापा को बनाएंगे या सिस्टर को बनाएंगे. इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर, आई हैड माय सिस्टर एज माय को डायरेक्टर, बिकॉज हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता है. तो आई थिंक, और हर कोई को फाउंडर ढूंढ रहा है, फिर भी को फाउंडर किसी को नहीं मिल रहा. तो बड़ी वियर्ड सिचुएशन है मार्केट में, सभी को फाउंडर चाहिए और लेकिन को फाउंडर किसी को नहीं मिल रहा है. तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आई नो, बट आई रियली नीड एन आंसर फॉर दैट. नो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो. अगर हम लोग ये सब छोटी छोटी चीजें सॉल्व कर लें तो वी आर मूविंग टुवर्ड सक्सेस. तो ये जरूरी, बहुत ही जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि को फाउंडर कैसे ढूंढें. तो को फाउंडर आप तभी ढूंढ सकते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं टू फाइंड अबाउट को फाउंडर. टू थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज आप उनको ट्रस्ट कितना करते हो, उन लोग आपको कितना ट्रस्ट करते हैं. दो को फाउंडर के बीच में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है. सो लुक फॉर पीपल whom you can trust and they can trust you. आप किसी को भी रैंडमली ऐसे को फाउंडर नहीं बना सकते. आई नो कि विद इन द फैमिली द ट्रस्ट लेवल इज वेरी हाई, बट आई ऑल्सो नो कि जो फ्रेंड्स के बीच में भी ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होता है, जिसके साथ आपका वो ट्रस्टेड रिलेशनशिप हो. बिकॉज बिजनेस वर्क्स ऑन ट्रस्ट. इट इज अ ट्रस्टेड रिलेशनशिप. अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, लेट अस डू दिस, ये हमारा गोल है, तो आपका जो पार्टनर है, आपका जो को फाउंडर है,
उसका भी वही गोल होना चाहिए, और दो लोग जो सोच रहे हैं उनके बीच में दरार नहीं आना चाहिए। बहुत जरूरी है ये, बिकॉज स्टार्टअप्स का ब्रेकअप वहीं से शुरू होता है जब दरार आता है बिटवीन पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर। सो ट्रस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ मच यू कैन ट्रस्ट समबडी, पहले आप वो देखें। तो आपको ये लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपके लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। दो और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक का पूछना है कि चूंकि आज सब कुछ डिजिटल है, स्पेशली पोस्ट कोविड-19, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल, तो क्या कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना स्टार्टअप खोलने के लिए बहुत जरूरी है? और दूसरा एक का किसी का क्वेश्चन था कि कॉमर्स का नॉलेज होना, क्योंकि बिजनेस इज अबाउट मनी, सो ये दो चीजों का नॉलेज होना, कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज और कॉमर्स का बेसिक नॉलेज। तो मैं उसका आंसर करना चाहूंगा, फिर मैं आपसे भी इनपुट चाहूंगा कि आजकल इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो सभी को आना चाहिए। आप स्टार्टअप खोले या ना खोले, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, अगर आप लिंक्डइन चला रहे हैं, तो आपको इनको यूज करना आना चाहिए। ये सिर्फ हमारे हॉलीडेज के फोटो शेयर करने का टूल नहीं है। नाउ दिस इज बियॉन्ड दैट। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये एक तो मनी मेकिंग टूल भी है, प्लस इससे आपको बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज आई थिंक सभी को होना चाहिए, जिसको सीखना बहुत आसान है। नंबर 2, कॉमर्स का बेसिक नॉलेज, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हमें भी डेबिट क्रेडिट करने में आज भी प्रॉब्लम होती है, बट बेसिक नॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शुरुआत में जरूरी नहीं है, बट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज वो सीखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स गुड टू हैव दीज टू स्किल्स। नाउ योर कमेंट ऑन दैट, सोहन। Yes, we'll talk about this part definitely। ये सीखने की वजह से आई थिंक वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अबाउट फाइंडिंग द को-फाउंडर। तो एक तो हमने ट्रस्ट के बारे में बात किया था, दूसरा जो है आपका जो पैशन है, आपका जो ड्रीम है, आपके को-फाउंडर में जो पैशन है वो मैच करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि इफ यू आर फाइंडिंग अ को-फाउंडर और उसको आपने ऐसे ही ले लिया को-फाउंडर, बट उसका कोई पैशन नहीं है, कुछ एक साल बाद उनको जॉब ज्वाइन करना है, तो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट आइडेंटिफाइंग दैट पर्सन एज ए को-फाउंडर। सो दो चीजें का ध्यान रखेंगे, एक तो ट्रस्ट का, दूसरा पैशन। अगर ये दोनों मैच कर गया, आपका पैशन कि आप हमें एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना है, एंड आपके फ्रेंड को भी करना है जिसका पैशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो यू कैन डू दैट। सो एवरी एंटरप्रेन्योर, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, उनका ये रोल रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलें, उनके साथ नेटवर्किंग करें, ताकि आपको आसान हो। कुछ लोगों को को-फाउंडर क्यों मिल जाता है और कुछ लोगों को क्यों नहीं मिलता? जिन लोगों को मिल जाता है उन लोग नेटवर्कर्स होते हैं, बेसिकली बिकॉज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिंक्डइन नेटवर्किंग करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, इट डज नॉट मैटर, आपको नेटवर्कर बनना बहुत जरूरी होता है, वो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यू विल नॉट फाइंड इट, कि आप अपना रास्ता खुद ढूंढ के तभी निकालेंगे जब आप उधर जाएंगे मैदान में, तो आपको निकालना पड़ेगा लोगों को। कैसे निकालेंगे? बाय डूइंग बिकमिंग ए नेटवर्कर, वो बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड अबाउट सीखने के बारे में, तो हमने इसमें 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। कि एक पॉइंट तो ये है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना जरूरी है। तो आज आपको शायद डिजिटल मार्केटिंग ना आए, बट आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं सीखूंगा, मुझे सीखना है। भले ही आप मास्टर ना बने उसकी, बट थोड़ा थोड़ा आपको उसकी जानकारी, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको सीखते चले जाएं। हर चीज थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएं। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक और चीज होता है कि आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, कि वो जॉब में आपको जब अप्रेजल होता है आपका, कि आपका परफॉर्मेंस होता है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट, सो दैट आपका प्रमोशन हो, आपका सैलरी हाइक हो, एंड ऑफ कोर्स एवरी एम्प्लॉय हैज टू बी बेस्ट। सो सब लोग वही सोचेंगे कि आई हैव टू बी द बेस्ट, आई हैव टू बी द बेस्ट, एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन। खुद करना है मुझे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद सब कुछ करना है। यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। आपको लोगों को जोड़ना है जो आपके ड्रीम के साथ जिनका मैच हो, एंड दे आर रेडी टू वर्क along with you, साथ में। तो you have to find out passionate people जो लोग साथ में काम करें। You should be able to find out कि कौन लोग ऐसे हैं
जो मेरे साथ काम करें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जो जानते हैं उनको आप हायर कर सकते हो, ओके, उनको आप ले सकते हो अपने बिजनेस में, उन लोग इंप्लीमेंट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको इग्नोर कर दें, आपको भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा 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 करके आपको सीखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। बिकॉज अ फाउंडर का ये भी रोल होता है कि आप गाइड करें, आप मेंटर करें अपने एंटायर टीम को, या फिर आप मेंटर करें अपने टीम को, या फिर कोई हो आपके टीम में, कोई एडवाइजर मेंटर हो जो बाकी लोगों को मेंटर करें टिल द टाइम आप उस लेवल तक उठ सकें। तो उसके लिए मेंटरिंग करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप करेंगे कैसे? तो थोड़ा थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सम मोर क्वेश्चंस आर कमिंग, इफ यू वांट वी कैन टेक सम मोर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन कंटिन्यू। I think we can continue, then we'll take questions, because we have to keep a clock on, eye on the clock also. We can continue, yeah, and then Yes, we can we'll take continue. the question. Yeah. Okay, we can continue. Good. So let us revise. आपका जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक करना है, एक स्टार्टअप। दूसरा सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो रखना बहुत जरूरी है। तीसरा ये चीज है कि इट इज नॉट नेसेसरी, कोई भी बिजनेस हो उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बट जब हम स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो आपका ये होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल एसेट्स हैं उससे हम कैसे बिजनेस बना सकें। टेकिंग एग्जांपल ऑफ ओयो, सभी ने यही किया है। ओयो, हाउ टू बी एसेट लाइट आप कैसे बने। ऑलरेडी hotels were available and Ritesh Agarwal did Oyo without spending money on building the hotel himself. So that is traditional business, is building the hotel yourself. But entrepreneurship is all about कि how can I use the existing resources जो already available है आपके आसपास, उसको आप कैसे जोड़ के आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब कंजूसी नहीं है, फ्रूगल का मतलब होता है कि जहां पे जरूरत पड़े वहीं पे आप खर्चा करें, और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे भी आप ये सोचें कि इसको बिना खर्चा किए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकें। बिकॉज फाइनली आप एंटरप्रेन्योर हो ना, आप बाकी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व। आप खुद का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए कि अगर मुझे पैसा का जरूरत पड़ रहा है टू रन दिस बिजनेस, कैन आई डू इट विदाउट स्पेंडिंग मनी। बिना खर्चा किए मैं क्या इसको अचीव कर सकता हूँ, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस अभी आए हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग से। एक का कहना है कि क्या एक स्टार्टअप मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट ले सकता है। आई थिंक ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कई एग्जांपल है हमारे पास। भोपाल में एक हमारा स्टार्टअप था जो मैनिट, जो हमारा सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है भोपाल का, MNIT, वहां भी इंक्यूबेटेड था, और एक हमारा स्मार्ट सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है वहां भी इंक्यूबेटेड था। तो थोड़ा कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों जगह से सपोर्ट लेते हैं, डिस्क्लोज भी नहीं करते कि हम वी आर टेकिंग सम सर्विसेज। फॉर एग्जांपल कुछ लोग आजकल वर्चुअल इंक्यूबेशन भी चलता है, तो वर्चुअली 3 इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड हो जाते हैं, एंड व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल तो वो एक फाइट शुरू हो जाता है कि वो किसका स्टार्टअप है, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर का भी अपना वो है। तो द बेस्ट पॉलिसी इज ऑलवेज डिस्क्लोज। अगर आप किसी और इंक्यूबेशन सेंटर से सपोर्ट ले रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि हर इंक्यूबेशन सेंटर का पॉलिसी अलग होता है। कुछ गवर्नमेंट, मोस्टली इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट के हैं, तो उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं। तो द बेस्ट पॉलिसी इज कि आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, इज अबाउट, काफी लोगों का कहना है कि पहली स्टेप एक स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए स्टार्टअप खोलने के लिए। फर्स्ट स्टेप जिसको लगे कि हाँ मुझे अब शुरू कर देना चाहिए, तो व्हाट कुड बी दैट फर्स्ट गोल्डन स्टेप फॉर अ स्टार्टअप और फॉर अ स्टूडेंट टू बिकम अ स्टार्टअप। Okay, first golden step for a student to become a startup. Very nice question, and ये जरूरी है आंसर करना भी, कि सबसे पहले आप ये लिस्ट करिए, ये फाइंड आउट करिए कि आपका पैशन क्या है। What is your passion? क्योंकि हर चीज स्टार्टअप्स में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप लोग सारे लोग यही लिख रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर, राइट। सो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगेंगे जब आपका पैशन बहुत हाई रहेगा। सो ये इजीली दीज आर स्मॉल हर्डल्स, बट इफ यू डू नॉट हैव पैशन, आपका पैशन नहीं है, तो ये बड़े हर्डल्स की तरह दिखते हैं। दिस लुक्स लाइक बोल्डर्स, यू नो।
पहाड़ जैसे दिखते हैं. सो इट्स अबाउट पैशन. तो आपको ये फाइंड करना है कि आपका पैशन क्या है. जितना जल्दी आप अपना पैशन पता कर लें, ये बहुत जरूरी है. पैशन पता करने का भी एक तरीका होता है. सो आप पहले लिस्ट करें कि व्हाट यू लव टू डू, what all the things. We'll take 2 minutes on this particular topic on how to find passion. So what you love to do, आपको क्या करने में अच्छा लगता है. Is it photography? Is it traveling? आपको पढ़ाना अच्छा लगता है. किसमें आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीजें करने में आपको खुशी मिलती है. You have to write down कि आपको कुकिंग अच्छा लगता है. It's okay. अगर आपको पैसे का और टाइम का कोई भी दिक्कत नहीं है, no constraints about time and money. ओके तो आप क्या करोगे, क्या चीजें आपको करने में अच्छा लगता है. यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन दैट एटलीस्ट 10-15 पॉइंट्स. ओके दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन फ्रॉम दैट आपको ये पता करना है कि वो जो आपने लिस्ट किया है, आप उन चीजों में आर यू गुड एट दैट, आर यू गुड इन सम ऑफ दिस थिंग्स. जैसे आपने फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है आपको, आर यू गुड इन फोटोग्राफी और यू आर नॉट गुड इन फोटोग्राफी. सो जब ये चीजें मैच हो जाए कि आपको जो अच्छा लगता है करने में एंड यू आर गुड एट दैट बिकम्स योर पैशन. आप उसको करने में कभी बोर नहीं होगे. आपको कोई भी दिक्कतें आएंगी आप फाइट कर लोगे और किसी तरह से आप उसको सक्सेसफुल कर लोगे. सो फाइंडिंग दैट पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार आपको पैशन मिल गया, उस पैशन के अराउंड यू हैव टू फाइंड बिजनेस प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू सॉल्व. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं चलता कई सालों तक कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है करना. ट्रू है ना. आई थिंक एक क्वेश्चन हम पेटेंट पे भी ले सकते हैं. एक ने पूछा है कि क्या हमें जब कोई आइडिया अच्छा लगता है तो हमें उसको पेटेंट फाइल कर लेना चाहिए, क्योंकि पेटेंट आने में तो समय लगेगा, बट एटलीस्ट फाइलिंग करके आइडिया पे काम करना चाहिए, या फिर हम आइडिया शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद कब हमको फाइलिंग अप्लाई करना चाहिए. वो आई थिंक 1-2 लोगों का क्वेश्चन है. इफ यू वांट टू आंसर दैट. या इट इज कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब फाइल करें पेटेंट. बट सबसे उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि आप उस आइडिया में कितने कॉन्फिडेंट हो, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर ऑन दैट आइडिया, और उसको आप कितना पब्लिसाइज कर सकते हो. सो इट इज हो सकता है कि आपको जो आइडिया है, यू शुड बी द फर्स्ट मूवर. 10 लोगों के पास वो आइडिया आई हो एंड एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग इट. आर यू रेडी टू अनाउंस दैट इन सोशल मीडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है. आर यू रेडी टू से दैट कि दिस इज माई बिजनेस एंड आई हैव स्टार्टेड वेरी इनोवेटिव सॉल्यूशन. मैंने एक बनाया है, मैंने ऐसा एक ऐप बनाया है जो विच कैन एनेबल फास्टर डिलीवरी, विच कैन डिलीवर मेडिसिन और समथिंग, वॉट एवर योर स्टार्टअप इज, जो भी आपका स्टार्टअप है. आर यू रेडी टू पुट दैट इन सोशल मीडिया? मीन्स यू शुड बी रेडी टू अनाउंस. जो सबसे पहले अनाउंस करता है वो उसी का बिजनेस हो जाता है. Right, and parallelly you can obviously file patents, but patenting is not just on ideas, it is on the implementation, it is on the solution, it is on the formulas, है ना. तो उस पे पेटेंट फाइल किया जाता है. आप जितना जल्दी हो सकता है आप फाइल कर सकते हैं. बट इससे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आर यू रेडी टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दैट. सी आइडिया तो है, उसको पेटेंट भी फाइल कर दिया, उसके बाद किया, आपको तो रेवेन्यू जनरेट करना ही है वहां से. सो उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है. आइडियाज भरे पड़े हैं, आइडिया की कमी नहीं है. जो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है उस आइडिया को, वही आगे उसको लेके जाता है. तो एग्जीक्यूशन इज नंबर 1 स्टेप. एंड पैरेलली यू कैन ऑब्वियसली प्रोटेक्ट योर बिजनेस बाय फाइलिंग पेटेंट्स, अनाउंसिंग इन सोशल मीडिया, बीइंग द फर्स्ट मूवर. तो सब आप कर सकते हैं. एंड जस्ट टू ऐड ऑन दैट, हमारा एक सेशन एक दिन हम सिर्फ पेटेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि पेटेंट्स को लेके काफी कंफ्यूजन है कि मोस्टली स्टार्टअप सर्विस बेस्ड होते हैं. तो हम एल्गोरिदम को कैसे पेटेंट करें, हम सूडो कोड पेटेंट करा सकते हैं क्या? जैसे आपने बोला आइडियाज पेटेंट नहीं होते, बट उसका भी क्या कुछ मतलब कैसे अपने आइडिया को आप सिक्योर करें, इसके लिए हम लोग विल हैव अ पैनल डिस्कशन. 3 पैनलिस्ट एंड couple of startups from manufacturing and service industry will join that. So maybe on 12th or 13th, we have that session planned. So we'll be talking only about patents and IPR, trademark and all those things on that very day.
सो आई थिंक एक और क्वेश्चन था, इंक्यूबेशन सेंटर क्या सपोर्ट पहुंचाता है? लोगों को एक कंफ्यूजन है कि इंक्यूबेशन सेंटर और कोवर्किंग स्पेस में बड़ा एक डाउट है कि आप हमको बैठने की जगह देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आपका है, इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा क्या है? सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल, इंक्यूबेशन सेंटर इज बियॉन्ड दैट। इंक्यूबेशन सेंटर आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है। आप जिस स्टेज में इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं, मे बी आप आइडिएशन स्टेज में आते हैं, या फिर आप एमवीपी बना के पहुंचते हैं, या प्रोडक्ट मार्केट फिट है तब आप पहुंचते हैं, या फिर आप ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज में हैं लेकिन आपको कुछ टर्म शीट फाइनल करने या एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना है। तो इंक्यूबेशन सेंटर एंड एक्सेलरेशन सेंटर आपको हर स्टेज में मदद करता है। और इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट से काफी ज्यादा जुड़ा होता है, आपको लोन्स कराने में, आपको इन्वेस्टमेंट कराने में, आपको मेंटरशिप दिलाने में, आपको टेक्निकल सपोर्ट दिलाने में। फॉर एग्जांपल, मेंटोर्स, जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर हैज गॉट 39 मेंटोर्स एंड 4 ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट शायद मध्य प्रदेश में नहीं है, जबलपुर भोपाल में नहीं है, आप क्या किसी फॉरेन कंट्री में हैं, तो बिना पैसे खर्च किए हुए आप फॉरेन कंट्री के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, आपकी टर्म शीट बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए पिच डेक बना सकते हो। ये सारी सर्विसेज आपको इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करता है। दिस इज डेफिनेटली बियॉन्ड योर co-working space. If you want to add something to that, you can add, because that's my subject, so I thought I should answer that. Absolutely. Sorry if I take the question. No, that's absolutely your subject, and वो एकदम you have given the perfect right example. Just to as a correlation, if you have to explain this, incubation center is playing the role of your parents. True. Very Okay. nice analogy. ये so you have to think your parents will take care of you for everything that you want. Incubation center is like that. उनका उतना रोल होता है, उतना उनकी इच्छा होती है आपको सपोर्ट करने में। ओके, दे आर लाइक, आप अगर कोई नदी क्रॉस कर रहे हो तो आपका हाथ पकड़ के आपके आगे चल रहे हैं उन लोग, सो दैट आपको दिक्कतें ना आई। ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड अपॉर्चुनिटी है तो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आप अपॉर्चुनिटी है, आप उसको छोड़ दोगे तो वो आपका लॉस है। So I think we'll be winding that up in next 3 minutes. So again, I would like to reiterate कि after this session, we'll have a quiz form, Google form, जो आप लोगों के साथ सोशल मीडिया के हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं, हमारा वेबसाइट है, सभी जगह शेयर किया जाएगा, इंक्लूडिंग जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर पोर्टल, इंक्यूबेशन मास्टर्स, YI भोपाल, CII and Youth Masters and RGPV. All these portal will have the information about the quiz form. वो आप लोगों को 1 घंटे में अवेलेबल हो जाएगा। और आपके जो कुछ को, आई थिंक वी कैन टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, or if you want to conclude something with some other thing, we can do that, or we can just take a few more questions. No, we can take questions. Let us help resolve the questions. We have Mr. Rishabh Dubey. He is asking how to motivate the team members who have got placed in MNCs to continue working in team, even though there are risks involved of failure. Yeah, it's a good question. If somebody has hired the intern and now intern has got a job in a good company, maybe TCS or Amazon, MDocs, so how to motivate them कि भैया हमारे साथ ही रुकिए, हमारा भी फ्यूचर काफी अच्छा है. It's a valid point. If you can take that question. Actually, entrepreneur का काम वही है. That is the work of an entrepreneur. कि आपका जो ड्रीम है वो आप कैसे पास करें लोगों को, so that they become convinced that they have to work with you. Okay, so ये बहुत important है. अगर कोई इंटर्न या कोई एम्प्लॉय बोलता है मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, उसका मतलब यही होता है कि आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है आपके खुद के स्टार्टअप के बारे में. ओके, सो पैशनेटली हाउ कैन यू एक्सप्लेन उनको? इट इज ऑल अबाउट शोइंग देम द पॉइंट बी, कि उनको जो I think we can take just one question because we have just got just 1 minute. Sorry to cut you just because we have got 1 minute. And this Preetam Kumar is asking what could be, मतलब लॉकडाउन के बाद में किन सेक्टर्स में या स्टार्टअप्स में हमको फोकस करना चाहिए ताकि सफल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हों? If you want to take that question. Yes, so all COVID related, definitely there is success. Delivery business, logistics, supply chain, ये सारे businesses में बहुत possibilities हैं where you can work on that. So essential services, commodities, consumables, these are the businesses जो which will be evergreen. Always focus on evergreen businesses, which is going to help a lot of people.
सो वो आप कर सकते हो. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. देयर इज अ टैक्सी कंपनी whose business has gone down. वो नीचे हो गया है. Now what they are doing is their drivers, they are changing their business कि वो drivers को आप instead of giving taxis, now they are giving drivers. Okay, so there is always a possibility of pivoting. So it is all possible to do focus on all consumable business and solving problem. Even on delivery business, grocery delivery business, there are already a lot of players. But अगर आप उसी को अगर 1 घंटे में आप डिलीवर कर सकते हो, you are solving problem. अगर कुछ चीजों को आप ऑटोमेट कर लो, कुछ बिजनेसेस को आप ऑनलाइन ले जाओ, so that is again a possibility. So there are various sectors. In fact, I had written an ebook on this कि what industries will work, and उसका YouTube में I have done a full 1 hour video on this. I can share the link. Please share that link. I'll pass it on to the participant. And I think one of participant asked कुछ अच्छे books suggest कीजिए. So it's always good to have contemporary writers जिन्होंने आज की दुनिया देखी है. कुछ जो books हम पढ़ते हैं वो जिन्होंने लिखी थी शायद वो अब obviously उनमें से काफी लोग नहीं. It's good to have those also. वो हमारे सब कुछ है. But still जितने contemporary books आज के startup ecosystem के बारे में या business industry के बारे में जो लोग लिखते हैं, I think that is more relevant to what's happening around us. Yes, so Think and Grow Rich is a very good book by Napoleon Hill. Now you may say that this is not related to startup. Okay, it does not matter whether it is related to startup or not. इस book में ये बताया गया है कि अगर if you don't give up, you will be successful. Yeah. So it's not whether that book is for startup or not. Ikigai करके एक book है which will help you to find your passion. There is a book called Ikigai. Ikigai is a Japanese book from Japan. In English version it is available. And उस book में ये पता करते हैं कि how to find your passion, how to find your purpose of life. So that is a very good book. 10x Rule by Grant Cardone. I think a couple of people missed it, the name of the book. Ikigai. One is Think and Grow Rich. I'm typing it. And Ikigai. 10x Rule. सब माइंडसेट के ऊपर बुक है. By Grant Cardone. So we will suggest more books, but आप पहले ये 2-3 books पहले पढ़ लीजिए. There are a lot of books, but let us read books. एक book तो पढ़ें, वो important है. Yeah. And thank you so much, Sohan. I know you came up on a very short notice, and thank you for your time. And thank you for all our participants. And I know we couldn't take all the questions because there are so many. Trust us, we can only take few. But फिर भी हमने discussion को काफी question answer पे ज्यादा based रखा, and we'll continue doing that. जो questions आपके miss हो गए हो, हमारे expert social media पे भी available हैं. आप वहाँ पे questions पूछ सकते हैं, and I'm sure everybody's question will be answered there. So thank you so much for your time, Sohan, and happy to have you today as always. And I look forward to have you again. Thank you, CK. It's my pleasure, and I'm always happy to support. Anybody wants any support, help, guidance, I'm there to help. So don't hesitate. We are here to help you. Jabalpur Incubation Center is there, committed for you. So take the best, utilize the best possible way, and be connected, be a networker. Connect with people, collaborate. Collaboration is the way to go. That's my message to all of you. साथ में मिलके काम करेंगे ना, we can grow together. That is always there. Yes. So collaboration is the key. Innovation is the key. Thank you so much, Sohan, and hope to see you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you everyone. Bye bye. Take care.